خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بچہ ڈوڈا سے پچھلے سال کپوارہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا اور اب اس بچے نے 24 پارہ قرآن کی مکمل کی ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ڈوڈا سے کپوارہ اس لیے پڑھنے آیا کیونکہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ جو شخص بھی علم کی راہ میں یا علم کی جستجو میں نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وادی کشمیر کے مشہور و معروف انسٹیٹیوٹ ڈریم ورلڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اعلیٰ چیزب کپوارہ میں اس وقت موجود ہوں، جہاں پر 1 سال پہلے بورڈنگ کی شروعات کی گئی تھی، جہاں پر بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ کس طریقے سے پرفارمنس ہے اور کس طریقے سے یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے، آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں پر بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ تو چلیے کچھ بچوں کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ بچے ہیں، ان سے ہم آج بات چیت کریں گے۔ بچہ آپ اپنا نام بتائیں اور آپ کہاں سے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد شعیب بٹ ہے، میں ڈوڈا میں رہتا ہوں۔ ڈوڈا سے یہاں تک کا سفر بتائیں گے کہ آپ ڈوڈا سے کپوارہ کیوں پڑھنے آئے؟ میں ڈوڈا سے کپوارہ اس لیے پڑھنے آیا کیونکہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ دینی تعلیم پڑھنے کا بھی میرے کو شوق ہے اور میرے والدین کو بھی شوق ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھے، کیونکہ میرے والدین نے یہ حدیث سنی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی لیے میں ڈوڈا سے یہاں پڑھنے آیا کیونکہ یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جی میں نے 24 پارہ مکمل حفظ کیا ہوا ہے۔ جو ابھی 6 ہیں؟ جی 6 باقی ہے ابھی۔ 1 سال میں کمپلیٹ کیا؟ جی 1 سال میں۔ اچھا بتائیے گا تھوڑا سا کہ کس طریقے کا سفر رہا، یہاں پر کس طریقے کی فیسلٹیز مل رہی ہے؟ یہاں پر فیسلٹیز بہت اچھی ہیں۔ پہلے سکول جاتے ہیں، صبح سکول جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ کے ہمیں ریسٹ دیا جاتا ہے عصر تک۔ عصر کے بعد ہم کھیلتے ہیں، اس کے بعد مغرب نماز کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عشاء نماز پڑھ کے ہم جو سکول کا کام جو ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں 11 سے 11:30 بجے تک یا کبھی 12 بجے تک۔ اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔ صبح پھر اٹھتے ہیں نماز کے لیے، نماز پڑھ کے ہم قرآن کا سبق پھر سے سناتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے اس میں ہم اور سکول کا جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جیسے آپ صبح سکول گئے، اس کے بعد میں 4 بجے چھٹی ہوتی ہے؟ جی 4 بجے۔ 4 بجے جب آپ یہاں پر اپنے ہاسٹل میں آ جاتے ہو، اس کے بعد میں کس طریقے سے آپ پڑھائی کرتے ہو؟ یہاں پر دینی تعلیم کب کرتے ہو؟ اس کے بعد جو ہے سکول سے جب 4 بجے واپس آتے ہیں اس کے بعد ہم ریسٹ دیا جاتا ہے عصر نماز تک۔ اچھا اس کے بعد میں کھیل کود، اور اس کے بعد میں آپ کو مولانا صاحب سکھاتے ہیں؟ جی اس کے بعد عصر کے بعد جو ہم کھیل کود جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں مفتی صاحب قرآن پڑھاتے ہیں مغرب کے بعد۔ کھانے پینے کی فیسلٹی کیسی ہے؟ کھانے پینے کی بھی بہت اچھی ہے، ٹیبلز وغیرہ چیئرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن جو ہے نان ویج دیتے ہیں اور 3 دن ویج دیتے ہیں۔ ٹھیک 24 پارہ اس بچے نے مکمل کی ہے۔ یہ ڈوڈا سے بچہ ہے اور آج میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ یہ بچہ ڈوڈا سے پچھلے سال کپوارہ میں پڑھنے کے لیے آ گیا اور اب اس بچے نے 24 پارہ قرآن کی مکمل کی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ حافظ قرآن بھی بننے والے ہیں اور یہاں پر باضابطہ طور پر اس کی دستار بندی بھی ہونے والی ہیں۔ آج یہ جتنے بھی بچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ بچے یہیں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ بورڈنگ بلڈنگ ہے جہاں پر ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پر ڈریم ورلڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اس بورڈنگ اسکول میں کرانا چاہتے ہیں تو آپ دیے گئے فون نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارا یہ چھوٹا بھائی ڈوڈا سے آ کر یہاں پر ایک تو قرآنی تعلیم، دوسرا دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔ کچھ اگر آپ سنانا چاہتے ہو قرآن کی کوئی سورہ، کوئی آیت اگر آپ سنانا چاہتے ہو تو؟ قرآن کا ایک سورہ میں سناؤں گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. माशाल्लाह बहुत अच्छा. कुछ और बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे. बच्चा, आप अपना नाम बताइए. कैसर मजीद बाट. आप कहाँ से? मैं लोलाब से हूँ सर. लोलाब से. यस सर. कितने टाइम से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो? सर हम पिछले 1 साल से इधर पढ़ाई. अच्छा, मुझे बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सर बहुत अच्छा लग रहा है, जो पढ़ाई के लिहाज से भी, और पढ़ाई भी हम करते हैं, स्कूल की एजुकेशन भी हम ले रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम दीनी तालीम भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं. फैसिलिटीज़ की बात. अच्छा, बताइएगा मुझे, जब आप पहले स्कूल जाते हो उसके बाद में किस तरीके से आप यहाँ रहते हो? सर सुबह हम जाते हैं स्कूल, तो स्कूल में पढ़कर हम वापस आते हैं यूँ 4 बजे के. फिर हम इधर रेस्ट करते हैं 1-2 घंटे. फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, असर की नमाज़. तो उसके बाद हमें रेस्ट मिलता है 1-2 घंटे खेल कूदने के लिए. उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर हमें हमारे मुफ्ती साहब जो हैं वो हमें कुरानिक एजुकेशन देते हैं और हम पढ़ते हैं. और फिर उसके बाद हम स्कूल का होमवर्क करते हैं. और अच्छा, होमवर्क जो आपको स्कूल में दिया जाता है वो आप फिर बाद में करते हैं? यस सर, स्कूल की होमवर्क. और फिर हम 11-12 बजे तक जो स्कूल की होमवर्क होती है वो करते हैं और पढ़ते हैं. उसके बाद हम फिर सुबह उठते हैं, हाँ सो जाते हैं, और फिर सुबह उठकर हम जो फिर से यही रूटीन. यस सर, फिर से यही रूटीन रहता है. अच्छा, दिल लग रहा है यहाँ पर? सर यस सर, दिल लग रहा है. सच बोलना, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है? यस सर, बहुत अच्छी मिलती है सर फैसिलिटीज़. इधर रूम्स भी अच्छे हैं. अच्छा, और सब कुछ मिल रहा है अच्छी तरीके से सर. तो ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर बोर्डिंग में पढ़ाई कर रहे हैं. मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम में ही जो कि इखलाकी तालीम नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हमारा समाज कहाँ किस ओर जाएगा ये हम भी नहीं सोच सकते, आप भी नहीं सोच सकते. तो आप बच्चा बताइए, आप कहाँ से हो? रहगाम से. रहगाम से. तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर की फैसिलिटीज़ जो देख रहे हैं हम, कि हमें यहाँ पर घर का जो माहौल होता है वही हमें मिल रहा है. जिस तरीके से आप घर में रहते हो वही वैसा ही आप यहाँ Yes, पर sir. फील करते हो? यस सर. ठीक है. तो किस क्लास में हो आप? 8th में. इस साल 8th में पोजीशन लानी है? यस सर, इंशाल्लाह. ताई, यस सर. तो मैं फिर आऊँगा, मैं पूछूंगा उस वक्त. यस सर. डन है ना? यस सर. ठीक है. तो चलिए आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं जो यहाँ पर बोर्डिंग फैसिलिटीज़ जो रखी गई हैं उसमें क्या कुछ इनको और मिलता है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. ये वो कमरा है जहाँ पर बच्चों को कुरान सिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को हदीस सिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को दीन और इस्लाम सिखाया जाता है. दुनियावी तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम दी जाती है. बच्चों को दिखा सकते हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कूल टाइम के बाद यानी स्कूल के बाद यहाँ पर इस तरीके से इनको यहाँ पर कुरान सिखाया जाता है. फ़िलहाल मेरे साथ मौलाना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं. पिछले साल इनके साथ हमारी मुलाकात हो चुकी थी. मौलाना साहब, पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. जिस तरीके से बच्चों की परफॉर्मेंस हमने देखी, अप टू मार्क है और अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं. तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 1 सालों के अंदर जब से हमने ये यहाँ पर बोर्डिंग का आगाज़ किया है तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, उसका एहसान हुआ कि इन बच्चों ने बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू किया. जो कुछ हमने इन्हें सिखाया इन्होंने उसको समझा, पढ़ा, फिर उसी तरीके से हमें सुनाया भी. ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है. कुछ बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह ऐसे हैं जिनको कुछ भी, यानी कि आप ऐसा समझें कि वो खाली थे, एक कोरे कागज़ की तरह थे, जैसे सफ़ेद कागज़ होता है. फिर उस पर हमने लिखाई करना शुरू की. लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो हमारा जो मेहनत थी, जो हमारी मेहनत थी वो रायगा नहीं गई. आपके सामने ही है बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है. आपने उनसे पूछा भी, तिलावत भी उन्होंने आपके सामने की है. तो बस हम यही दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें आगे की मनाजिल को इनके लिए आसान करे. जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, मन सलका तरीक़न सलकल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, कि जो शख्स भी इल्म की राह में या इल्म की जस्तजू में निकलता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देते हैं. तो ये बच्चे जो आपको देख रहे हैं ये इल्म की जस्तजू में हैं, तो ये ऐसा समझें ये जन्नत के रास्ते पर हैं. तो मैं भी उन पेरेंट्स से ये गुजारिश करता हूँ कि जो अपने लिए जन्नत कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए जन्नत कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दीन की तालीम दे सकते हैं.
तो मौलाना साहब रूटीन क्या रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा दिन भर थके रहते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके बाद में आप मैनेज कैसे करते हो उनको? ये बच्चों को ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि कुरान की जो मुश्किल होता है। बिल्कुल हाँ, ये बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, लेकिन ये आसान काम नहीं है। इनको बच्चों को सुबह सवेरे उठना है, यानी कि आप ऐसा समझें कि अज़ान से पहले पहले इन्हें उठना है, अज़ान देनी है। यहाँ चूँकि यहीं पर ऊपर मस्जिद भी है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, ये उठते हैं और फिर यहीं पर नमाज है, और नमाज के फ़ौरन बाद ही इनकी क्लास लग जाती है। यानी कि ऐसा समझें 8 साढ़े 8 बजे तक इनकी क्लास होती है। उसके बाद फिर इनका नाश्ता होता है। नाश्ता आपको मालूम भी है, आपने देखा भी होगा, और अगर कोई नाज़रीन देखना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स देखना चाहते हैं, तो वो सुबह 8-9 बजे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वो देखें यहाँ का नाश्ता वगैरह। तो बच्चे नाश्ता करते हैं। उसके बाद फिर हमारे स्कूल का आगाज़ होता है 10 साढ़े 10 बजे, जो रूटीन है। फिर अपने पूरा रूटीन के बाद फिर शाम को इनका थोड़ा सा खेलना वगैरह हो गया, असर नमाज के बाद मगरिब तक खेलते हैं। फिर शाम नमाज के बाद फिर ये अपने कुरान के सबक के लिए इशा की नमाज तक बैठ जाते हैं। तो इसी पूरे दिन में इनकी 5 वक़्त नमाज भी है, इनके कुरान की तिलावत भी है, इनका दीन का दुनिया का सब सारे असबाक भी हैं। और इशा के बाद फिर जो इनको होमवर्क वगैरह दिया जाता है, जो इनको क्लास वर्क होता है, जो याद करना है, वो इशा के बाद ये अपना स्कूल का वर्क करते हैं उसके अंदर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. स्कूल के बाद यहाँ पर बच्चों को बिठाया जाता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं किस तरीके से आराम करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आइए कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर इस तरीके का इंतज़ाम रखा गया है जिससे बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ाई कर सके और आराम से बड़े कूल अंदाज में शोर शराबे के बगैर आराम कर सके। बच्चा आप किस क्लास में हो? 7th में। पढ़ाई अच्छी चल रही है? सर। तो यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज़ है? फैसिलिटी तो अच्छी है सर। अच्छी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना सर? ठीक है। बच्चा आप कहाँ से? हायामा से। हायामा से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। बेड वेड ठीक तरीके से मिल रहा है? यस सर। फैसिलिटीज अच्छी है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। ड्रीम वर्ल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलाची ज़ब कुपवारा की जानिब से यहाँ पर एक बोर्डिंग फैसिलिटी दस्तयाब रखी है जहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। 30 सीटें यहाँ पर इनके पास अभी हैं। अगर आप अपने बच्चों का दाखिला यहाँ पर कराना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर पर आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ 30 सीटें बची हैं, जल्दी से अपना एडमिशन फॉर्म इनसे हासिल कर लीजिए। ये मेस फैसिलिटी है जो बच्चों को दी जा रही है। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ सफाई का खास इंतजाम रखा गया है। अगर आप भी ड्रीम वर्ल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का दाखिला करना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। 30 सीटें अभी यहाँ पर हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सीखे तो आपके लिए बड़ा मौका बन सकता है, क्योंकि एडमिशन यहाँ पर शुरू हो गया है। बोर्डिंग स्कूल में अभी लगभग 30 सीटें अभी भी बाकी हैं। जल्दी से आप यहाँ पर अपना एडमिशन फॉर्म हासिल कीजिए